हंगामा लगा करके और कुछ हम कुछ 5-10 मिनट की बहस करके अदम पैरवी में निरुद्ध कैदियों को अगर हम बाहर लाने में सफल हुए तो हम आज का ये सेमिनार एक सफल है। माफ करना, मैं कुछ ज्यादा बोल गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में मुझे अपनी बात करने का अवसर। Thank you very much, sir, for your kind and encouraging words. I am profoundly delighted to invite our esteemed chief guest, Honorable Minister for Law and Justice, Government of India, Shri Kiran Rijuji, the man of distinct vision and fountainhead of illuminating ideas, to kindly deliver his address and enlighten the audience. My colleague, Minister of State, Professor S.P. Singh Bagelji, the chairperson of the Law Commission of India, Justice Rituraj Awasthi, the acting Chief Justice of the High Court of Rajasthan, Justice Mahendra Mohan Srivastava, Honorable Justice of the High Court of Rajasthan, members of the Law Commission of India, most respected Vice University, Ivy Trivedi, the other judges, the district presidents of courts, Solicitor General of India, all other law officers, member of the bars and the Bar Council and the Bar Association, the invited guests present here, the faculty members, and my dear students. First of all, every time I'm here in Udaipur, I get excited. Just being in the beautiful city of Udaipur, there is something very energizing spirit in Udaipur because of the location, because of the way the people are here, because of the culture. Everything about Udaipur is so vibrant and so positive. I would like to thank the Law Commission of India, Justice Awasthi and his team, and particularly Professor Paliwalji, who have designed this event in such a way that our honorable judges from the Rajasthan High Court and other dignitaries are gathering here to make some valuable contributions, share our thoughts, views on a subject which is so relevant to all of us. I'm sure during these various sessions, technical sessions, where the experts will be delivering their ideas and their suggestions, and also I hope the students and other members who would be present here will actively participate and make this conference, these seminars very useful and memorable. I would like to thank the Mohanlal Sukade University also for giving this space along with very beautiful campus, the students, and hosting this seminar in this prestigious university. The topic itself is so relevant that when we talk about the sustainable development, not only in India, but globally,
there are so many things to offer. Our previous speakers, Rituraj ji, my colleague, Professor S.P. Singh Baghel, our Honorable Acting Chief Justice, Srivastav ji, and respected Vice Chancellor, they have made some valuable remarks. And I hope during the technical session, this will be elaborated, lots of lights will be thrown into it, and the outcome from this seminar will be brought into practice as much as possible in terms of framing right policies, right legislation, and appropriate judiciary actions. Now, we all know, as we mentioned, that the environment and sustainable development is part of India's ancient culture, ancient heritage. It is widely been described all over how India and Indian civilization treat environment as a way of life. But unfortunately, the way we conduct ourselves, the way we live our life has become a threat to our own existence. The quest to achieve economic growth and the haphazard manner in which the things are happening around, this is threatening our own existence. We all know the life of Earth is not infinite. The Earth came into existence at certain point of time, and it will not remain indefinitely. But we have a moral obligation and duty that as long as this Earth is there, and as long as we live in our period, we must do justice to the planet Earth. It is our bounded duty. It is our culture. It is our civilization. So as I said, the way we are moving towards with our quest to gather greater momentum of economic growth, invariably we are destroying ourselves. I'm not going to make a detailed remarks on this matter, but just to understand that in our own lifetime, how the damages are so extensive, and I fear that we may cross that barrier where the return back to the normal will be impossible. So we are reaching an inflection point where if we don't control, we don't create a proper goals, proper target for ourselves, the human beings will be too late. And as it is, we humans have conquered the earth. The other species, including the plants, the environment, are at the mercy of the human beings. I remember at the time when we were small, the environment was all over. We were just part of the environment. Now we have captured the environment. When we were small boy, moving around in the village, the basic training given to us where you can cut the trees as much as possible, because the village is overgrown with trees and forests. So it was difficult for the human existence. The villages are encroached by the wild animals. So the lessons taught to especially the male boys are that boys have to kill wild animals. Boys will have to cut the trees. Boys have to chop the forest grasses as much as possible. And that is something being treated as a symbol of manhood, that how much you can destroy forest. Because that time the conflict was such that the human existence was totally at the mercy of the environment. But now, as the roads have come, as the electricity is being established, all the modern gadgets are available, why do we need to cut the trees?
Why do we need to kill the animals? They are no more threat to our existence. But still, I feel so disturbed. The educated people, they go for hunting. And the more wealthy people, they are hell-bent on destroying the forests. Despite the court's order to ban the felling of the trees, despite the government policies to protect the forest through various regulations and acts, still people will manage to get themselves involved in all kind of illegal felling of trees and destroying the environment. I feel sad. In my home state, we have so much of pristine forests. Still now, we have more than 80% of the areas covered by forests, but you hardly see any animals or birds in the forest. It's all empty, silent. It's very sad. So once when I was newly elected as member of parliament, long time back, I told the parliament that in my village I can't see monkeys and beautiful birds, but I see monkeys and birds in Delhi. Actually, we feel like there is a monkey menace in the cities. So the life in our village has changed. And my lifestyle will be different from a person who is living in Udaipur, any part of Rajasthan. We were facing the brunt of the nature. Here you are facing the deficiency of the nature. You have deficiency in rainfall. You have shortage of forest covered, grass covered areas, which is abundance in our place. So our life and your life is totally different. We have to adapt to the situation. Now the things are reversing. So that is why I feel that the way we live and the way we used to live, there is vast difference. In the Western world, where they don't have the philosophy of what we have in India, but they have established certain goals and they have been able to achieve it. Now see the conflict. India's per capita income today stands at close to $2,100 per annum. So an average Indian earns $2,100. So in American Western countries, or in some of the Eastern countries, Singapore, Hong Kong, Japan, the high net worth people, the per capita income is about $50,000. Even they have crossed. Now India aspires to reach a middle income country. India aspires to become a global economic leader. Now for that, we have to achieve economic growth. Suppose from $2,100 we jump twice, means we double our income. Then we become $4,200. When India becomes a country with an average per capita income of $4,200, then our consumption will become double. We will consume double of food items, all daily needs. Whatever we do, we will buy more vehicles, we will burn more fuels, we will use more materials. And now if we become 4 times richer than what we are now, then we become $8,400. So when India becomes a country of per capita income of $8,400, that still is not higher income. That will still be treated as a middle income. Now you can imagine what will happen to our environment, how much we will consume, where is the land space, how much agriculture produces will be required because we will eat more, we will waste more. So where are we heading to? The only way to maintain our economic growth, increasing our life standard, and also to maintain environment is a sustainable development.
Now, this sustainable development is a key word. I'm not going to deliver it extensively, but just to drive some of the points. Now, we are hosting G20 summit. Now, this is India's presidency. Prime Minister has rightly coined the theme of this year's G20, one world, one family. This emerges from Vasudev Kutumbakam. And with this, we have infused the Indian values. Now, sustainable development is a key part of every sectoral discussions which we are going to have. And as the Law Commission is organizing this event, of course, this is not a very global or international in nature, but during this India's presidency of G20 summit, I feel this seminar becomes very pertinent. It's very, very relevant. And I will try to get out of this seminar and share with my colleagues from the G20 countries, all other countries, wherever we have share India's ideas, India's policies with our neighboring countries and our all friendly countries. So when we talk about sustainable development, the targets are being set. Now, these 17 sustainable development goals which have been identified are very well known. It is a United Nations mandate and every country has to work towards that. Some of the policies which government of India has adopted, you'll be surprised. In last 8.5 years, India has, in fact, achieved which we set much before the timeline. It is a very encouraging for all of us. For example, we are talking about the green economy. Now, green economy is a concept which every country must adhere to. When we talk about India's green economy, what comes into our mind? India's solar energy, wind energy, and our biogas potentials. We have immense potential to harness. Even if we can harness 80% of the potentials that India has, we will overshoot our target. Now, India is already a global leader in green energy market. Recently, the cabinet has taken lots of decisions. I'm not going to spell out in details here, but you can access to some of the government decisions which we have taken in recent times to further our objective and aims to achieve all the sustainable development goals. Now, for example, Prime Minister had mentioned about the 3 pillars for green growth. Number 1 is increasing the renewable energy production. And when we talk about increasing renewable energy production, I just give you one example. In 2014, our ethanol blending with petrol was only 1.5%. And then subsequently, Prime Minister Modi ji set the target of 10%. And we achieved 10% target much before the stipulated time. And now we have moved towards a target of 20% ethanol blended with the petrol. That means today India is a global leader in green energy. And now second point is we have to reduce our dependency on the use of fossil fuels. There's no other way out. We have to reduce it. And then we have to move towards the gas-based economy. As I said, India has to grow. Now the Western countries, when the environment was not a big issue, when the climate change was not even a part of discussion, they had attained their level of development. They became rich. By the time
India started growing, this issue has become a reality. Now, we are not closing our eyes, but we are telling the Western world that India is a responsible country, but we will not compromise with our economic growth because we want Indians to have the same standard of life which the Western people are enjoying. हमारे पास भी तो अधिकार है ना कि पश्चिमी देशों में जिस तरीके से उन्होंने अपनी जिंदगी जिया है और जैसे जी रहे हैं, कम से कम उसका आसपास तक उस तरीके से जीने का हमारा पास भी अधिकार है। लेकिन हम अपना जिम्मेदारी को हम नहीं भूल सकते। क्लाइमेट चेंज और इस पृथ्वी को बचाए रखना ये सबका जिम्मेदारी है, लेकिन इंडिया का जिम्मेदारी ज्यादा इसलिए बढ़ता है कि अगर इंडिया सक्सेस होता है, इंडिया कामयाब होता है तो विश्व कामयाब होता है। अगर इंडिया विफल हो जाएगा तो विश्व विफल हो जाएगा। हमारा जो परसेंटेज ग्लोबल शेयर में जो हमारा परसेंटेज है वो इतना ज्यादा है कि आज विश्व के हर कोने में हर देश जब किसी भी एक सामूहिक संयुक्त राष्ट्र का कोई भी विषय होता है तो चीन और भारत की ओर देखता है। और हम क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है तो हमसे अपेक्षा भी ज्यादा रखते हैं। इसलिए मैं आपको जिक्र किया कि ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में हमने कैसे सफलता प्राप्त की है और हमने इतना एम्बिशियस टारगेट रखा है जो हम मानते हैं कि हम कर पाएंगे। आज जब विश्व का किसी भी प्लेटफॉर्म में प्रधानमंत्री मोदी जी अपना बात रखते हैं तो बहुत गंभीरता से दुनिया सुनते हैं उसको। जैसे कि जो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021 में हुई थी उसमें प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, मैं कोट करता हूं, द रोड टू फाइटिंग क्लाइमेट चेंज इज थ्रू क्लाइमेट जस्टिस। ये प्राइम मिनिस्टर का वाक्य है और ये क्लाइमेट जस्टिस का शब्द प्रधानमंत्री जी ने पहली बार इस्तेमाल किया। The road to fighting climate change is through climate justice. At the root of climate justice is the principle of being large-hearted. Climate justice is also about thinking of bigger and long-term picture. The sad reality is changes in the environment and natural disasters impact the poor the most. Climate justice is inspired by a vision of trusteeship where growth comes with greater compassion to the poorest. Climate justice also means giving the developing countries enough space to grow. When each and every one of us understands our individual and collective duties, climate justice will be achieved. जब प्रधानमंत्री जी ने ये फिलॉसफी को दुनिया के सामने में रखा, शुरू में कई लोगों को समझने में दिक्कत भी हुई और समय भी लगा, लेकिन अब दुनिया बिल्कुल समझ गया है कि मोदी जी के जो कंसेप्ट है, उसका विजन है, यही विजन दुनिया के लिए सबसे सही विजन है। ये सबने माना है। इसलिए आज जब हम G20 का प्रेसिडेंसी कर रहे हैं तो जो भी सेक्टर, जैसे कल G20 का फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड प्रेसिडेंट ऑफ द सेंट्रल बैंक का गवर्नर्स का जो कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सही तरीके से भारत का विजन को रखा है। और आने वाले दिनों में साल भर का जो बैठकें होंगी उसमें भारत लीड रोल ले रहे हैं और ये एनवायरनमेंट के इशू, ग्रीन इकोनॉमी, ये सारा चीज बहुत ही सेंट्रल रोल प्ले करने वाले हैं। इसलिए खास करके जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बात करते हैं तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं और स्पेशली यहाँ लॉ स्टूडेंट्स हैं, आप बहुत गंभीरता से ध्यान पूर्वक आप हिस्सा ले करके फिर ये सारे मुद्दे को आप समझना है। फिर जब आगे आप कार्य करेंगे, कहीं भी आप किसी कार्यक्रम में भाग लेंगे तो आप
अपना कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं और अपने फ्यूचर जो कंडक्ट है इसको भी आप सही तरीके से अपना सकते हैं। मैं ये मानता हूं कि हमारा भारत के जुडिशरी और मेरे मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस हम लोग का भी बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। जैसे कि हम ई कोर्ट्स के बारे में बहुत जोर शोर से काम कर रहे हैं और अभी तो लगभग सबको देश भर में पता चल ही गया है कि ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट जो अभी हमने फेज 3 शुरू किया है और 7,000 करोड़ अभी अभी जो बजट पास हुए हैं उसमें बजट आवंटन किया गया है। और ये जो फ्यूचर पेपरलेस इंडियन जुडिशरी के दिशा में जो हम जा रहे हैं ये एक दृष्टि से सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट फ्रेंडली के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम तो नहीं चाहते कि आने वाला दिन में कोई पेपर भी हमारे सामने में रखे। एवरीथिंग हैज टू बी डिजिटल। जब हम बात करते हैं जैसे राजस्थान इतना बड़ा राज्य है, हाईकोर्ट का प्रिंसिपल बेंच जोधपुर में है और आपके दूसरा जयपुर बेंच है, फिर हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है। आगे जाकर के हमको अलग बेंच बिताने का जरूरत भी नहीं होगा। ये जो मेवाड़ रीजन है उदयपुर में, यहां से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअल कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स यही होंगे। यहाँ का वकील आपको जयपुर जोधपुर जाने का जरूरत क्यों पड़ना चाहिए बताइए। आप 400-500 किलोमीटर गाड़ी चला के जाएंगे, कितना पेट्रोल डीजल फूकेंगे। इकोनॉमी के लिए वो सस्टेनेबल तो नहीं है, लेकिन एनवायरनमेंट के लिए भी कितना खतरनाक है आप सोचिए। क्यों हमारे वकीलों को इधर से उधर भटकना पड़े। आप जहां है वही आपका कोर्ट होना चाहिए और जज आपको वही जुड़ेंगे। तो आगे जो हम वर्चुअल कोर्ट्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से पेपरलेस इंडियन जुडिशरी के दिशा में हम जो जा रहे हैं, ये हम बहुत ही लगभग आधा रास्ता तय कर चुके हैं। मेरे भारत का मुख्य न्यायाधीश जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़ साहब से कई बार मेरा बातचीत हो चुके हैं। अब हम इसको पूरा फाइनल शेप दे रहे हैं। सारे हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जितना हमारे बाकी कोर्ट्स हैं, ट्राइब्यूनल्स जितना भी हमारे बने हैं, सारे के सारे टेक्नोलॉजी की लेस्ट पूरा हम लोग वेल इक्विप्ड की दृष्टि में सब कामयाब हो रहे हैं। और थोड़ा सा और पूछ देना है, मैं मानता हूं जो ई कोर्ट फेज 1 में, उसमें तो आप लोग जानते हैं मामूली सा एक कंप्यूटर मशीन रखना था, टाइपिंग करना था, मैसेज भेजना था। वहां से हम कहां पहुंच गए हैं। और जब हम ई कोर्ट फेज 2 में जो हमने कामयाबी प्राप्त किया, उसी की वजह से तो कोविड के समय में हमारा कोर्ट चलता रहा। आप सोचे भारतीय कोर्ट्स बंद नहीं थे। कोविड के दौरान हमारा जजेस और हमारे वकील न्याय दिलाने का लगातार काम करते रहे। वो क्योंकि हमने ढांचा बढ़ा कर रखा हुआ था। 2015 में मोदी जी के नेतृत्व में जब ई कोर्ट फेज 2 को हमने बल दिया, तो कई चीजें हमने देश भर में बिछाया, जिसकी वजह से कोर्ट के सामने में काम करने के लिए सुविधा हुआ है। अब जब हम ई कोर्ट फेज 3 के ओर जा रहे हैं, अब तो हम बहुत ही अलग बोर्ड में पहुंच गए हैं और कई हाई कोर्ट ने अच्छे काम किए हैं। मैं राजस्थान हाई कोर्ट का सराहना करना चाहता हूं। राजस्थान हाई कोर्ट ने भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत अच्छा काम किया है, जिससे लोगों को न्याय दिलाने में बहुत काम आया। हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजेस हैं, हमारे एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब के नेतृत्व में अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में सारे अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे मालूम है कुछ हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यू है। मुझे पिछली बार बताया गया कि उदयपुर का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा कंजस्टेड हो गए हैं। ये सारा इश्यू इंफ्रास्ट्रक्चर का मैंने पिछली बार भी वादा किया हुआ है कि राजस्थान से जो भी आपका सबऑर्डिनेट कोर्ट्स वगैरह नीचे में टॉयलेट बनाना, बाथरूम बनना, लेडी लॉयर के लिए अलग से व्यवस्था होना, स्मार्ट रूम, ये सारा जो भी व्यवस्था मदद करना है, हम पूरा मदद करेंगे। आप यहाँ से जो भी प्रपोजल भेजेंगे, राज्य सरकार के साथ तालमेल करके हम पूरा मदद करने के लिए तैयार है। क्योंकि जुडिशरी के जब हम बात करते हैं तो उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है।
वहां जो विक्टिम्स होते हैं, जो प्लेंटिफ होते हैं, जो लोग पब्लिक होते हैं, उनके लिए भी तो साधन होना चाहिए, उनके लिए भी सुविधा होना चाहिए। तो चाहे वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हम कई कदम उठा रहे हैं। मैं ये मानता हूं कि आने वाला दिनों में जो पेंडेंसी है, मैंने पिछली बार भी इसका जिक्र किया था कि लगभग 4 करोड़ 90 लाख तो क्रॉस हो चुके हैं, हम लगभग 5 करोड़ की ओर जा रहे हैं। ये जो पेंडेंसी है, मेरे लिए तो ये हर समय हर पल मुझे बहुत डिस्टर्ब करते हैं कि किसी भी राष्ट्र में, किसी भी समाज में इतना ज्यादा केसेस पेंडिंग होना, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। ये हमारे लिए, हमारे सिस्टम के लिए भी शोभा नहीं देते हैं। कई कारण है पेंडिंग का, एक कारण नहीं है, और आज मैं उस कारण का चर्चा करना भी नहीं चाहता हूं, और उसका सॉल्यूशन भी कई रास्ते हैं। तो वो सॉल्यूशन, ये सब जितना भी चर्चा हम लोग आगे करते रहेंगे, उसका एक सबसे बड़ा सॉल्यूशन तो टेक्नोलॉजी है, जो मैंने ब्रीफली जिक्र किया। इसके अलावा हम काफी चीज मंत्रालय के माध्यम से हम काम कर रहे हैं। ई कमेटी के, सुप्रीम कोर्ट का जो ई कमेटी है, उससे तालमेल करके हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट हम तालमेल करके कई कदम उठा रहे हैं। आने वाले दिनों में हम बहुत कुछ करने वाले हैं। तो मैं मानता हूं कि पेंडेंसी ठीक है, अगर हम पेंडेंसी को आज के दिन में संख्या का दृष्टि से कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा डिस्पोजल रेट है, न्याय देने का जो प्रक्रिया है, उसको और हम तेजी करना चाहिए। क्योंकि आप लोग तो सब जानते ही हैं, हमारा इंडियन जजेस का हालत बहुत खराब है आज के दिन में। एक एक जजेस जितना केसेस हैंडल करता है, मैं तो समझता हूं कि ये बाकी लोगों के लिए तो असंभव है। अब मैं मेरा कोई मंत्री कलीग बाहर देश के जस्टिस मंत्री कभी चर्चा करते हैं, वो विश्वास नहीं करते हैं कि हमारे भारत में एक जज एक दिन में 50-60 केसेस हैंडल करते हैं। सबसे पहले तो वो विश्वास नहीं करते, वो बोलते हैं कि ये भी तो इंसान है, भारत के लोग भी इंसान है, तो एक जज 50-60 केसेस कैसे हैंडल करते हैं। मैं बोलता हूं कि कोई मन पसंद हो के थोड़ी ना हैंडल करते हैं, इतना केसेस पेंडिंग है, मजबूरी में देखना पड़ता है। तो ये तो बड़ा चिंता का विषय तो है ही, और इतना केसेस डिस्पोज भी करते हैं, न्याय देते हैं, लेकिन उससे दोगुना केसेस हर दिन नया नया केस आते रहते हैं। तो ये भी देखना होगा। ये आज जुडिशरी के बारे में मैं जो ज्यादा कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन कितना केसेस लेना है, कितना केसेस हम इनटेक कैपेसिटी है, और कितना नए केस लेने हैं, कितना पुराना केसेस, पेंडिंग केसेस को ठीक करना, क्यों केसेस डिले होते हैं, अथॉरिटीज का, इन्वेस्टिगेशन टीम का कई इशू होता है। लेकिन आम आदमी सीधा सवाल करते हैं, मुझे भी सवाल करते हैं, आप न्याय मंत्री हैं, इतना केसेस पेंडिंग है, न्याय जल्दी दिलाने में क्यों कामयाब नहीं हो रहे हैं, क्यों इतना केसेस पेंडिंग है। और जजेस को भी सवाल करते हैं, बेचारे जजेस तो हमारे जैसे ओपनली कह भी नहीं सकते हैं। जजेस लोग तो कहने के लिए भी बहुत सोच समझ करके बात करना पड़ता है। हमारे जैसे, हम तो पॉलिटिशियन है, तो कभी कभी हम जो सोचता है हम बेटू कह देते हैं, जजेस लोग तो इतना कह भी नहीं सकते। लेकिन ये लोगों को पता नहीं कि जजेस इतना ज्यादा काम करते हैं, लेकिन फिर भी पेंडेंसी बढ़ता है। उसमें जजेस का गलती नहीं है, गलती सिस्टम और जो हमारा यहाँ प्रथा जो बनाया हुआ कि इतना केसेस और आ रहे हैं। कई कारण है, मैं उसको ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि एक डायनामिक लीगल सिस्टम हमारा देश में जैसा होना चाहिए, वो हम उसी रास्ते में जा रहे हैं। कई पुराने कानून है जो कोई जरूरत नहीं है, हम पूरा हटाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको पता है 1486 पुराने कानून हम ऑलरेडी हटा दिए गए हैं 2014 से 2023 के बीच में। और अभी जो बजट सेशन चल रहे हैं, अभी जो ब्रेक चल रहा है, उसमें 67 न्यू जो हमने प्रपोजल डाला है, उसमें से पुराने कानूनों को हटाने का हमने पार्लियामेंट में अमेंडमेंट बिल लेके आए हैं। क्योंकि ऐसे कानून जो जरूरी नहीं है, क्यों हमारे स्टेचू बुक में रहना चाहिए।
ऐसा कानून हो जो हमारे काम में आए। कोई ऐसा कानून का प्रावधान है, कोई काम नहीं है, वो हमारे आम लोगों को परेशानी देने के लिए कानून बनाया गया था उस जमाने में, अंग्रेजों के जमाने में। कई कानूनी प्रावधान ऐसा है जो बिना मतलब लोगों को परेशानी देती है, कोई जरूरत नहीं ऐसे कानून का। हम लोग ढूंढ ढूंढ के ऐसे पुराने बेकार का कानून को सब हटाने का हमने अभियान शुरू कर दिया है। मोदी जी ने क्लियरली कहा है, जो कानून देश की आम जनता के लिए बोझ है, ऐसा कानून हमारा स्टैट्यूट बुक्स में रहना नहीं चाहिए। और बिना मतलब हमारे जुडिशरी लॉयर्स को हम परेशानी देते हैं, इतना कानून बना देते हैं। कानून उतना ही बनाना है जितना जरूरत हो, और डायनेमिक है, जैसे जरूरत चीज है हम कानून बनाते हैं, बदलते हैं। तो हमारा सरकार का पूरा फोकस क्लियर कट है कि हम पीपुल सेंट्रिक है, कॉमन पीपुल सेंट्रिक है, गरीबों के लिए हम समर्पित है, और कोई ऐसा कानून प्रावधान नहीं होना चाहिए जो गरीबों के लिए, आम आदमी को परेशानी दे। इसी दृष्टि से इन्वायरमेंट फ्रेंडली के लिए हमारे पास कई कानून है, चाहे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट हो, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, कई कानून हमारे पास है। कानून भी है और सरकार का पॉलिसी भी है, और कई कोर्ट्स ने, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स का अच्छे अच्छे जजमेंट रूलिंग्स भी हमारे हाथों में है। ये सारा चीजों को देखते हुए अगर हम एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हम बिहेव करें, तो भारत को इकोनॉमिक ग्रोथ में हम आज सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला बड़ा अर्थव्यवस्था बन के बैठा हुआ है। तो हम इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी में अचीव करेंगे, और हम अपना एनवायरनमेंट को बचा के रखेंगे, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको भी हम प्राप्त करेंगे। हम अमीर भी हो सकते हैं, और हम इन्वायरमेंट के दृष्टि से भी बहुत ही इन्वायरमेंट फ्रेंडली कंट्री भी बनना चाहिए। तो दोनों को जो तालमेल करता है, इस यही तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ए डेवलपमेंट व्हिच हैज टू बी सस्टेनेबल। Unsustainable development has no meaning. That will lead to digging our own graveyard. वो तो हम तो सुसाइड काम तो नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो टारगेट लेकर के आज यहाँ हमने सेमिनार में आने का काम किया है, हमने बहुत ज्यादा सोच के नहीं आया है। मैं इसलिए ज्यादा भी नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि जो आप टेक्निकल सेशन में कई चीजें बारीकी से आप चर्चा करेंगे, और हम तो जस्ट आपको एक एनकरेजमेंट, सपोर्ट और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए, साथ देने के लिए आए हैं। जो असली मूल भाव जो इस सेमिनार का है, वो जो टेक्निकल सेशन होते हैं वहीं से उभर के आएंगे। अंत में मैं अपने युवा साथियों को कहना चाहता हूं, आप निश्चिंत रहिए, आप मेहनत कीजिए, आपका भविष्य उज्जवल है। इंडिया इज द फ्यूचर। इंडिया को दुनिया अब लीडरशिप मान्यता दे चुके हैं। दिस इज आवर मोमेंट, दिस इज द टाइम फॉर इंडिया, और हम अपना लीडरशिप को सही तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व को लीड करने का कैपेसिटी रखते हैं, और आज हम लीडरशिप का रोल दे रहे हैं। इसी दृष्टि से आपका भविष्य के लिए, चाहे आप एज ए लॉ स्टूडेंट आप लीगल प्रोफेशन में रहे, या एज ए लॉ ग्रेजुएट कुछ भी कर सकते हैं। मैं भी लॉ ग्रेजुएट हूं, लेकिन मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं, लेकिन लीगल एजुकेशन इज ऑलवेज हेल्पफुल, और लॉ के बारे में जानकारी बहुत अच्छी बात है। अभी हमारा राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल साहब बता रहे हैं, जेल के बारे में बोल रहे थे, कैदियों के बारे में भी बात कर रहे थे। आप लोग को नहीं मालूम, वो पुलिस ऑफिसर थे पॉलिटिक्स में आने से पहले, इसलिए उसका ये सब बहुत इंटरेस्ट रहता है। तो ये सारे जो लोगों का ज्ञान जिसका पास होता है, वो थोड़ा अपने आप को वो सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि उसका पास लॉ का डिग्री है। लोग भी डरते हैं ना, वकील बोलने से लोग डरते हैं। तो आप LLB डिग्री पाने के बाद आप प्रैक्टिस ना करें वो आपका इच्छा का अनुसार आप कर सकते हैं, लेकिन आपका डिग्री आपके लिए बहुत बड़ा सर्टिफिकेट है।
और आपके फ्यूचर के लिए रेगुलर प्रैक्टिस, रेगुलर लीगल प्रोफेशन के अलावा कई चीजें कर सकते हैं हम। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म के दुनिया में भी हम बहुत आगे निकल चुके हैं। आर्बिट्रेशन के दुनिया में, मीडिएशन की दुनिया में भारत एक रास्ता खोल रहे हैं। और अभी अभी पिछले सप्ताह हमने दिल्ली हाई कोर्ट के ये लीडरशिप में बहुत बड़ा एक कार्यक्रम जो हुआ था, मैंने भी हिस्सा लिया उसमें। आर्बिट्रेशन को लेकर के कई लोग आए, दुनिया के बड़े बड़े शहरों, बड़े बड़े देशों से प्रतिनिधि आए, और सबने माना कि एडीआर के क्षेत्र में भी भारत एक लीडरशिप के रूप में उभर के आ रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटीज बहुत है आपके सामने में। एज इंडिया ग्रोज एज इकोनॉमिक पावर, opportunities are bound to come in front of you. You just have to grab the opportunities. आप तैयार रखिए, मेहनत कीजिए। आपके लिए भविष्य में कोई टेंशन लेने का नहीं है, बस सिर्फ मेहनत करना है। विदाउट हार्ड वर्क एंड विदाउट डिसिप्लिन लाइफ में कुछ नहीं हो सकते। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, और मैं आपको कहता हूं और कहना चाहता हूं, आप इंटेलिजेंट होगा, अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो फिर फायदा नहीं है। आदमी का जिंदगी में देश के लिए कुछ करने के लिए, जो भी आप काम करें, देश के लिए कुछ करना चाहिए। मैं जब छोटा था, हम तो जब चीन का आक्रमण हुआ तो मेरा तो जन्म नहीं हुआ उस समय, लेकिन वही कहानी सुन सुन के हम बड़ा हुआ कि चाइना अटैक किया था, ये किया था, वो किया था, हमारे कुछ लोग खेती चले गए, हमारा काफी इंडियन आर्मी का सेक्रीफाइस हुआ, काफी नुकसान हुआ। ये सब हम लोग सुनते सुनते आए, लेकिन साथ साथ मन में एक जज्बा पैदा होते गए कि हम बड़ा होकर के देश के लिए कुछ करेंगे, हम चीन को सबक सिखाना चाहते हैं। तो वो गुस्सा, वो ऐसा हमारे मन में थे, तो उसी से हमारे अंदर में जो राष्ट्रीयता का भाव है, सेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म, वो बहुत उभर के आए हैं। और इसलिए आप जानते हैं अरुणाचल में लोग जय हिंद नारा लगाते हैं, और फौजी में, एसएसबी में, बीएसएफ में, आईटीबीपी, एसएसबी या जो भी यूनिफॉर्म फोर्सेस में जाना चाहते हैं, लड़ाई करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से हम जिस माहौल में पैदा हुए, उससे काफी चीज हमको बल मिलता है कि कुछ करना है, लेकिन देश के लिए कुछ करना चाहिए। इसलिए जो भी आप काम करें, जिस प्रोफेशन में भी रहे, ये याद रखें कि देश के लिए कुछ काम आना चाहिए। मैं कुछ और कहना चाहता हूँ, लेकिन आज नहीं कहूंगा क्योंकि आज काफी स्टूडेंट्स है, तो और मैं बाकी सीरियस इश्यूज पे मैं टच नहीं करूंगा। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि अगर हम कहते हैं कि इंडिया सुपर पावर बन के ही रहेंगे, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा 2047 तक इंडिया विल बिकम फुल्ली डेवलप्ड कंट्री, वो इसलिए कह रहे हैं कि वो आप लोगों के ऊपर में कॉन्फिडेंस है। अगर हमारे युवाओं के ऊपर में, हमारा देश के युवा पीढ़ी के ऊपर भरोसा नहीं होते, तो प्राइम मिनिस्टर इतना बड़ा लक्ष्य, इतना बड़ा सपना नहीं देखते। वो इतना बड़ा लक्ष्य इसलिए रखा है कि हम प्राप्त कर सकते हैं अपने जो यंग जनरेशन के बलबूते। आपके ताकत, आपके डेडिकेशन और आपके योगदान से हम अपना सपना पूरा कर सकते हैं। एंड मैं तो देख रहा हूं कि विवेकानंद ने, जब आप लोग को मालूम होगा, आपने पढ़ा होगा, स्वामी विवेकानंद ने इस बात को कही थी कि 21वीं सदी भारत का सदी होगा, 21st सेंचुरी विल बी इंडिया सेंचुरी। और ये हम पूरा होते हुए अपने आंखों के सामने में देख रहा है। ये कितनी बड़ी बात है। वी आर द लकीस्ट जनरेशन। हमारा पहले जनरेशन गुलामी के वो जंजीरों में सब अपना जिंदगी चले गए। 200 years उससे पहले अलग अलग शासक आए। हम लोग तो फ्रीडम के समय पैदा भी हुए इंडिपेंडेंट इंडिया में, और इंडिया डेवलप होते भी देख रहे हैं। मैं तो शायद उतना तो बुरा नहीं हुआ, 2047 तक तो मैं उम्मीद रखता हूं कि मैं पूरा जिंदा रहूंगा और देख पाऊंगा कि इंडिया फुल्ली डेवलप होगा। तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूं, और आप लोग जो यंगर जनरेशन है, आप तो हमसे भी ज्यादा खुशकिस्मत वाले हैं। तो आपके समय में इंडिया विल बी फुल्ली डेवलप एंड ए ग्लोबल सुपर पावर। ये पूरा हमको करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
Thank you so much, sir. It was a distinct honor to hear you and take inspiration from your words. We really feel privileged to have your supervision and backing with us at all times possible. Many, many thanks to all the guests on the dais for their illuminating words. Ladies and gentlemen, now, with the permission of the chief guest, Honorable Minister for Law and Justice, I declare this conference open for further proceedings. The conference agenda covers a variety of range of subjects on which are essential to the goal that we are working towards. We anticipate having a fruitful discussion. Let me once again express a sincere welcome to all the dignitaries and the experts. सभागार में उपस्थित सभी से अनुरोध है कि वे राष्ट्रगान हेतु कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जावें। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। With this, the inaugural session has come to an end. कार्यक्रम के सफल संचालन में सहयोग हेतु सभी उपस्थित अतिथियों एवं विद्यार्थियों को हृदय से धन्यवाद देते हैं। सभी महानुभावों से निवेदन है कि वे अतिथियों के प्रस्थान तक अपने स्थान पर खड़े रहें तथा सदन की वंदे मातरम। गणतंत्र दिवस की अनेक बधाई और शुभकामनाएं। हमारे प्यारे भारत की पुण्य भूमि पर एक नई सुबह, नए संदेश को लेकर आई ये सुबह, जब भारत मना रहा है अपना 74वां गणतंत्र दिवस। अनगिनत देशभक्तों और देश प्रेमियों ने इस देश को संवारने में अपना योगदान दिया, कष्ट सहे, बलिदान दिए, देश की माटी को अपने माथे का गौरव बनाकर उसके लिए सर्वस्व निछावर करने को तत्पर रहे हैं। इन्हीं प्रयासों से हम आजाद हुए। आजाद होने के बाद हम लोकतांत्रिक गणराज्य बने,
जब हमने अपना संविधान अपनाया। आज हमारे गणतंत्र बनने की सालगिरह है। इस बार निखरे और संवरे कर्तव्य पथ पर सजावट पहले से बेहतर है। दर्शकों की आकर्षक दीर्घाएं हैं, जनसमूह में उत्सुकता और जोश है। आज बसंत पंचमी का त्योहार भी है। बसंत पंचमी की अनेक शुभकामनाएं। मकर संक्रांति से उत्तरायण हुए सूर्य का असर अब मौसम पर साफ दिखने लगा है। आज की सुबह का मौसम शानदार गणतंत्र दिवस परेड के बिल्कुल अनुकूल है। कर्तव्य पथ गणतंत्र दिवस समारोह का मुख्य आयोजन स्थल है। राष्ट्र अपने अमृत महोत्सव में आज पहली बार कर्तव्य पथ पर परेड का साक्षी बनेगा। गौरवशाली देशवासियों के साथ दुनिया भर के विदेशी मित्रों की मौजूदगी में गणतंत्र दिवस समारोह मनाने का विशेष अवसर है। आज के समारोह में परेड की सलामी भारत की माननीय राष्ट्रपति लेंगी। गणतंत्र दिवस समारोह में मिस्र के राष्ट्रपति महामहिम अब्दुल फतेह अल सीसी हमारे मुख्य अतिथि हैं। तो अब से कुछ ही देर में शुरू होगा हमारी सांस्कृतिक विरासत और सैन्य शक्ति का भव्य प्रदर्शन। Namaskar. As the largest democracy in the world awakens to celebrate its 74th Republic Day, we reach out to every Indian, not only across the length and breadth of this beautiful, diverse and unique country we call home, but also to those who, while living in foreign lands, feel that special tug of this ancient land. Republic Day greetings to one and all. Nestling a new name in its artistic aura, this historic avenue, now named Kartavya Path, is ready and waiting to host that celebration of military movement, armored display, and cultural kaleidoscope we call our Republic Day Parade. It's a misty morning. The early morning chill seems to be on its way out, and as the morning mist rises so that the sun may rise to the occasion, its gentle warmth will slowly elevate the temperature, spirits, and of course, curiosity levels. Well, winter has this beautiful way of helping us understand the importance and value of warmth in our lives. Today, these winter-washed vistas come alive with the warmth of brotherhood and national pride. Kitted out in their warm winter woolens, viewers from all walks of life are seated here as one people to celebrate our diversity while valuing our oneness. Celebration, in fact, takes on true meaning only when the reasons behind it have meaning for all, including the last marginalized person. The engines of the largest democracy in the world are its people, its driving force. The 26th of January marks that day when our Constitution came into effect on this day. It was in 1950. The founding fathers of this nation and those visionaries who framed the longest written constitution in the world knew that only on the pillars of justice, liberty, fraternity, and equality could an enduring, equitable, and empowering democracy rest. गणतंत्र गौरवशाली भारतीय संस्कृति में सदियों से चली आ रही एक समृद्ध परंपरा। भारतीय इतिहास के लिए ये कोई नया शब्द नहीं है। वैदिक साहित्य, ऋग्वेद, अथर्ववेद और पौराणिक ग्रंथों में भी गणतंत्र का वर्णन है। बौद्ध काल में भी कई चर्चित गणराज्य थे। पाणिनि के अष्टाध्यायी और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी गणराज्यों का जिक्र है। हर भारतीय की रगों में सदियों से बह रही गणतांत्रिक प्रणाली को हमारे नीति निर्धारकों ने आजादी के बाद एक बार फिर से जीवंत कर गणतंत्र के मजबूत धागों में पिरो दिया। 26 जनवरी 1950 को हमने अपना पहला गणतंत्र दिवस बहुत ही उत्साह से मनाया और तभी से ये यात्रा इसी तरह चली आ रही है। भारतीय गणतंत्र का आधार है हमारा संविधान। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित भारतीय संविधान उन सपनों को साकार करता है जो परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़े भारत के नागरिकों ने
स्वतंत्र और खुशहाल जीवन के लिए देखा था। गुलाम भारत में देशवासियों के पास कोई अधिकार नहीं था। उस समय से ही उनके मन में खुद के लिए अधिकार की ख्वाहिश थी। आजादी के बाद जब भारत का संविधान बना तो उसमें देशवासियों को बेहतर और खुशहाल जीवन जीने के लिए मौलिक अधिकार दिए गए। मौलिक अधिकारों की बात करें तो इनमें समता व समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार शामिल है। देशवासी अपने अधिकारों का उपयोग कर सकें और कर्तव्यों का ठीक ढंग से निर्वहन कर सकें, इसके लिए बेहतर माहौल देना सरकार का उत्तरदायित्व है। एक और नौसिखिया। हाँ, सब बाहर से ही शुरू करते हैं। तो मदद की जाए। और क्या, ये लो रेड बुल, अब कोशिश करो। Red Bull gives you wings. मौजूदा सरकार ने अपनी दूरदर्शी सोच, कठिन मेहनत और कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को हंसने, मुस्कुराने और खुलकर जीवन जीने का अवसर दिया है। ये देश सशक्त हो रहा है, समृद्ध हो रहा है, लगातार नई नई बुलंदियों को हासिल कर न्यू इंडिया के निर्माण की ओर आगे बढ़ रहा है। Welcome viewers to the newly refurbished Vista, where this magnificent parade will unfold, a spectacle that happens on the magnificent stretch from Raisina Hills to the National War Memorial, a visual delight for an invited and ticketed audience seated on both sides of the ceremonial boulevard, the newly named Kartavya Path. Every year on the 26th of January, India celebrates its Republic Day with the greatest pride and zeal. As we commemorate the day, we became truly independent and a democratic republic nation. This day, our constitution, which is one of the most admired constitutions of the world, was enacted, meticulously drafted under the chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar, having in it several salient features that distinguish it from that of other countries. The world's longest written national constitution, it lays down the framework that demarcates fundamental political code, structure, procedures, powers and duties of government institutions, and sets out fundamental rights, directive principles and the duties of citizens. It is a day when thousands line up, braving the weather and endless queues for security checks and entry from Raisina to Red Fort, where they are seated to be a part of this grand spectacle. Everything is shiny and bright, polished and primed for this grand parade, and this is a day that evokes emotions of grandeur and patriotism in every citizen, as it marks the power of Indian citizens to choose their government democratically. As India marks its platinum jubilee year of independence in Amrit Kal, we rightfully have so much to be proud of, as we're all gathered here to be a part of the 74th Republic Day celebrations. Children with their cheeks painted with the tricolour, and here you can see how eager and enthusiastic they are. In a few minutes, we shall witness the grand spectacle of our country's military prowess, scientific development, our rich cultural past and present, and the most favourite and not to be missed part of the parade at the end, when we have the daredevils of the Corps of Signals as well as the flypast by the Indian Air Force. 74वें गणतंत्र दिवस का राष्ट्रीय पर्व यानी हर भारतीय के लिए गर्व और गौरव का अवसर। गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर राष्ट्रीयता के रंगों से दमकता नया नवेला कर्तव्य पथ आज भव्य परेड का साक्षी बनेगा, जो विजय चौक से आरंभ होगी और इंडिया गेट होते हुए मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम तक पहुंचेगी। पिछले वर्षों में संकल्प से सिद्धि के रास्ते पर चलते हुए लगभग हर क्षेत्र में हमारे देश ने सफलता के नए अध्याय लिखे हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, आधारभूत सुविधाएं, औद्योगिक क्षेत्र में आशातीत प्रगति, विदेश नीति के नए आयाम, ये सभी अमृत काल के स्वर्णिम हस्ताक्षर हैं। आज के भारत में सकारात्मक बदलाव की सतत प्रक्रिया का अहम हिस्सा है
आत्मनिर्भर भारत अभियान। देश के अमृत काल में भारत को G20 जैसी महत्वपूर्ण संस्था की अध्यक्षता का अनुपम अवसर मिला है और G20 का शिखर सम्मेलन इसी वर्ष राजधानी दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। पारदर्शिता का आलम यह है कि दुनिया इस बात की भी साक्षी है कि कैसे भारत अपने यहाँ गवर्नेंस का नया अध्याय लिख रहा है। करोड़ों लोगों को 4 लाख रुपया तक के दुर्घटना और जीवन बीमा की सुविधा मिली। करोड़ों भारतीयों को 60 वर्ष की आयु के बाद एक निश्चित पेंशन की व्यवस्था मिली। अपना पक्का घर, टॉयलेट, गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, बैंक में खाता, ऐसी सुविधाओं के लिए तो गरीब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट काट करके उनकी जिंदगी पूरी हो जाती, वो हार जाते थे। हमारी सरकार ने इन सारी परिस्थितियों को बनाने के लिए भारत का देना चाहता हूं कि भारत की G20 अध्यक्षता इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड होगी। इंडोनेशिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को G20 की अध्यक्षता सौंपी। भारत वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के भाव के साथ इस उत्तरदायित्व को निभाने के लिए तैयार है। भारत का एजेंडा समावेशी, निर्णायक, महत्वाकांक्षी और कार्यों के प्रति समर्पित होगा। G20 शिखर सम्मेलन होने तक देश भर के 50 शहरों में 200 से अधिक बैठकों की योजना बनाई गई है। भारत G20 में संस्कृति, सांस्कृतिक विरासत, विविधता और 75 वर्षों की अपनी उपलब्धियों और प्रगति को भी पेश करेगा। राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम की भावना से भारत अमृत काल में नया अध्याय लिखने को तैयार है। A spectacle of this scale cannot be organized without massive organizational skill and military discipline,
planning from a multitude of agencies. And each year, the parade showcases and celebrates our military might, the cultural diversity, and the tableaus depicting the progress and achievements, the rich traditions of music, dance, our soldiers, our freedom fighters, the brave children, the many talented other children and youth who take part in the parade, all coming together in the biggest event in the capital city. Thousands of participants who brave months of preparations under the most tough weather conditions and the tightest and most elaborate security arrangements to put up a spectacular, colorful and scrupulously choreographed show that is beamed across the country and beyond for everyone to see India at its most fine. The parade itself begins at Raisina Hill, Vijay Chowk, and traverses through Kartavya Path up to the National War Memorial and then goes on to Red Fort, a distance of around 8 kilometers. Special mention must be made of the departure from protocol this year to include in its invited guests. Right now you're seeing on the screen the many children who've been invited here, but essentially we're talking about the unsung heroes of our country, the Shram Yogis, who have contributed to the construction and renovation of this vista on which we are today. The Power Corridor, the new Parliament, and the executive enclaves of the Vice President and the Prime Minister's office and residence. These are workers and also street vendors, milk and vegetable vendors who are occupying the enclosure which is opposite the saluting days, being given the pride of place, making the whole event inclusive, participative and truly democratic. A republic that is by the people, of the people and for the people. We also have some 200 students, which you saw a little earlier, students and teachers who will be part of the Prime Minister's initiative of Pariksha Pe Charcha and our special guests of today's parade. The entire stretch from Rashtrapati Bhavan to the War Memorial has been renovated, and it's after 2 years of construction and refurbishment that we're getting to see this aesthetically designed ceremonial boulevard. The audience at Kartavya Path, seated on the newly installed bleachers with retractable seats that have been reduced and reorganized this year for around 45,000 seats, of which 32,000 are for the public. कर्तव्य पथ जो पिछले वर्ष तक राजपथ था, वो सेंट्रल विस्टा के सौंदर्यीकरण और सुधार का परिणाम है। इस पूरे इलाके पर बदलाव की ऐसी बयार चली है जिसने इसके कायाकल्प की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वर्षों से जिन बातों की जरूरत महसूस की जा रही थी, उनको ध्यान में रखते हुए सेंट्रल विस्टा का काम जारी है। राष्ट्रीय समर स्मारक इंडिया गेट से आगे और ये कर्तव्य पथ सेंट्रल विस्टा के तहत राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक का क्षेत्र आता है। 100 वर्ष से भी ज्यादा पहले बनाई गई इमारतों की जरूरत वक्त के साथ बदल गई है। इसमें आज के मुताबिक सुविधाएं और जगह को देखते हुए सेंट्रल विस्टा के सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू किया गया। रायसीना पहाड़ी पर ऐतिहासिक राष्ट्रपति भवन और रायसीना पहाड़ी के नीचे उतरते ही नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक की इमारतें, जहां प्रधानमंत्री कार्यालय और अन्य महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं। विजय चौक के उत्तर में लोकतंत्र का मंदिर, भारत की संसद है। ऐतिहासिक राष्ट्रपति भवन, ये सभी इमारतें 1911 से 1931 के बीच बनी थी। इंडिया गेट के आसपास का पूरा इलाका स्थानीय और देशी पर्यटकों और विदेशी पर्यटकों का पसंदीदा स्थान रहता है। काफी समय से ये महसूस किया जा रहा था कि सुविधाओं की कमी पड़ रही है। सेंट्रल विस्टा का यह पूरा इलाका अब बदल रहा है। आने वालों के लिए सुविधाएं हैं, साफ सफाई है। यहां आने का अनुभव अब एक सुखद याद बनकर रह जाता है।
नई संभावनाएं, नई उम्मीदें, और इन्हीं उम्मीदों को नई उड़ान दे रहा है सेंट्रल विस्टा। ये कहानी है आत्मनिर्भर भारत की। पर्यावरण को बिना कोई नुकसान पहुंचाए रायसीना पहाड़ी और आसपास के दायरे में फैली ये परियोजना किसी सपने को साकार करने जैसी है। इसमें प्रधानमंत्री और उपराष्ट्र करते हुए नई संसद भवन को भव्य और नई सुविधाओं के साथ विशाल स्वरूप में बनाया जा रहा है। फूल कमल की थीम पर राज्यसभा का निर्माण कुल 3220 वर्ग मीटर क्षेत्र में किया जाएगा। एक भारत के गौरवपूर्ण इतिहास का साक्षी है। सेंट्रल विस्टा पुनर्निर्माण परियोजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर के कर्तव्य पथ और ग्रेनाइट से बनी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक प्रतिमा का अनावरण किया। ये प्रतिमा ऐतिहासिक इंडिया गेट के ठीक सामने सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में स्थापित की गई है। एवेन्यू को पर्यटकों और दिव्यांगजनों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। चाहे जन सुविधाएं हों या परिवहन, छोटी से छोटी जरूरत का ख्याल रखा गया है और इसे नया रूप दिया गया है। आने वाले समय में सेंट्रल विस्टा नए भारत के गौरव की नई कहानी बयां करेगा। Kartavya Path prettified and preening, and it seems that this ceremonial boulevard is very well aware of its importance today, eagerly awaiting the host that is going to happen of medley of music. And here we have, over here in the audience, specially invited Shram Yogis, people who have contributed to actually renovating and redoing this ceremonial boulevard. The aim and the theme, of course, is more inclusion of the common person and mainstreaming it. We have street vendors, small vegetable vendors, and also we have special invitees, young children who will be participating in Pariksha Pe Charcha, the program, 200 of them, all over here, special enclosures, frontline VIPs. So Kartavya Path actually waiting to host and eagerly awaiting to hear the sounds of a medley of sounds. Varied beats as the parade goes by, the crisp clip-clop of horse hooves, the gentle swoosh of softly padded camel feet, and the gentle tinkle of the bells as they go by. In fact, India is a nation on the move, and the nature of movement, however, is such that it always leaves things behind. It is the content of what we leave behind and what we take along with us that the context of the future rests. And as we celebrate our 74th Republic Day, our extraordinary existence as a civilization through centuries of change and as a republic for just over 7 decades is foregrounded. गणतंत्र दिवस परेड के दौरान विदेशी अतिथियों की इस राष्ट्रीय पर्व के समारोह में भाग लेने की विशिष्ट परंपरा रही है। इरविन स्टेडियम पर आयोजित पहले गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्णो मुख्य अतिथि थे। 1955 से वर्तमान आयोजन स्थल पर होने वाली भव्य और आकर्षक परेड में अब तक सर्वाधिक 5 बार फ्रांस और ब्रिटेन के अतिथि शामिल हुए हैं और बहुत से विदेशी मेहमानों ने साल दर साल गणतंत्र दिवस परेड की शोभा बढ़ाई है। इस वर्ष गणतंत्र दिवस के खास मेहमान हैं मिस्र के राष्ट्रपति महामहिम अब्दुल फतेह अल सीसी। भारत और मिस्र इस साल राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष मना रहे हैं और भारत की G20 की अध्यक्षता के दौरान मिस्र को अतिथि देश के रूप में भी आमंत्रित किया गया है। खास बात यह है कि पहली बार मिस्र के राष्ट्रपति महामहिम अब्दुल फतेह अल सीसी गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे बीच मौजूद होंगे। मिस्र सेना से जनरल पद से सेवानिवृत्त हुए
अब्देल फतेह अल सीसी 2014 में मिस्र के छठे राष्ट्रपति बने और 2018 में एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। इन्हीं के कार्यकाल में मिस्र भारत के लिए सबसे बड़े निवेश स्थलों में एक बना। साथ ही दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को भी आगे बढ़ाया गया है। उम्मीद है कि अब्देल फतेह सीसी की भारत यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंधों का एक नया अध्याय शुरू होगा। India and Egypt share close political understanding based on a long history of contact and cooperation in bilateral, regional and global issues. Both countries have cooperated closely in multilateral fora and were the founding members of the non-aligned movement. As you can see visuals coming to you from the saluting base, we've got an invited audience that is really keen and waiting patiently in this cold weather for the parade to begin. We also have 200 students and teachers who will be part of the Prime Minister's initiative of Pariksha Pe Charcha as special guests of today's parade. And you can see them enthusiastically waving to the camera as it's spanning across, taking their pictures. This year's celebrations reflect the Prime Minister's vision of Jan Bhagidari, and the week-long celebrations for Republic Day begin on the 23rd of January, the birth anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose, and ends on the 30th of Jan, which is Martyrs' Day. Some other highlights of this year's celebration sees a special cultural extravaganza, that is the Vande Bharatiyam group of dancers drawn from across the country. We've got Tales of Bravery by Veer Gatha 2.0 participants, a special military tattoo and tribal festival, melodious performances by an All India School Band competition, military and Coast Guard bands at the National War Memorial, NCC camps, digital sculpture projection, drone show, projection mapping, digital tributes at the National War Memorial, the Tyag Chakra, and of course Bharat Parv celebrations. The Republic today reminds us that as a nation we have entered the last quarter of our centenary celebrations, truly a period of Amrit Kal, to touch new heights of glory and attain new pinnacles of development, growth and harmony. We should also all pledge today to work together and leave no stone unturned towards taking the nation forward and always serving the nation first before self. 75 वर्ष पूर्व हमारा देश आजाद हुआ, फिर हमने संविधान अपनाया, हम लोकतांत्रिक गणराज्य बने। हमारे लोकतंत्र में ऐसे कई महत्वपूर्ण पड़ाव आए हैं जिनसे दुनिया विस्मय करती है। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। हमारा संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। सभी को स्वतंत्रता, समानता और समान अवसर इसी संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं। इसका प्रभाव ये हुआ है कि देश के कोने कोने से साधारण पृष्ठभूमि के लोग भी शीर्ष और सर्वोच्च पदों तक पहुंचे हैं। देश के स्वतंत्र होने से पहले इस तरह की कल्पना कठिन थी, लेकिन अब बदलाव की ये मानव परंपरा सी बन चली है। भारत में लोकतंत्र की जड़ें बड़ी पुरानी हैं। लोकतंत्र की परिकल्पना सबसे पहले भारत भूमि पर ही साकार हुई थी। लोकतंत्र में सरकारें चुनने का अधिकार केवल जनता का होता है और भारत के लोकतंत्र का जो दुनिया में विशेष स्थान है, उसकी ये पहचान और लोकतंत्र की शान दुनिया को चमत्कृत करती रहती है। इसी कड़ी में महत्वपूर्ण अध्याय तब जुड़ा जब पिछले वर्ष देश की 15वीं राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च संवैधानिक पद पर अपना कार्यभार संभाला। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में पहली बार एक आदिवासी महिला ने राष्ट्रपति का पदभार संभाला है। देश के सबसे पिछड़े इलाकों में शुमार ओडिशा के मयूरभंज जिले के संथाल परिवार में जन्मी द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति पद तक का सफर
उनके संघर्ष की कहानी बताता है। अभाव में गुजरा बचपन, युवा काल का संघर्ष, व्यक्तिगत जीवन के उतार चढ़ाव, सार्वजनिक जीवन की सादगी और बेदाग छवि, यही है बहुआयामी प्रतिभा की धनी द्रौपदी मुर्मू का व्यक्तित्व। साल 1979 में भुवनेश्वर के रामा देवी महिला कॉलेज से स्नातक करने के बाद आपने ओडिशा सरकार के सिंचाई विभाग में क्लर्क की नौकरी की। कुछ समय बाद नौकरी छोड़कर आपने अपने घर रायरंगपुर में एक शिक्षक के तौर पर भी काम किया। एक शिक्षक के तौर पर अपने क्षेत्र में उन्हें एक नई पहचान मिली। जाके क्या बनना चाहती हो? टीचर। वाह, वेरी गुड। टीचर मतलब क्या होता है जानती हो? देश को बनाने वाला, IAS ऑफिसर को बनाने वाला, IPS को बनाने वाला, इंजीनियर को बनाने वाला। टीचर जो होते हैं वो बनाने वाला, इसलिए टीचर सदा नमस्य होते हैं। इस तरह जनता और समाज से जुड़कर लोगों के बीच एक अलग पहचान बनाई। साल 1997 में द्रौपदी मुर्मू पहली बार रायरंगपुर नगर पंचायत में वार्ड पार्षद बनी। इसके बाद वो नगर पंचायत की उपाध्यक्ष भी बनाई गई। पहली बार विधायक बनने के बाद आपने साल 2000 से 2004 तक ओडिशा सरकार में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री के तौर पर काम किया। आपको ओडिशा में सर्वश्रेष्ठ विधायकों को मिलने वाले नीलकंठ पुरस्कार से भी नवाजा गया। इसके बाद साल 2015 में आपको झारखंड का राज्यपाल बनाया गया। सार्वजनिक जीवन से लेकर संवैधानिक पदों पर दशकों से रहते हुए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की छवि बेदाग रही है। सन 1958 में जन्मी द्रौपदी मुर्मू पहली राष्ट्रपति हैं जिनका जन्म आजादी के बाद हुआ। महिलाओं के विकास में ही देश का विकास निहित है। महिलाओं के योगदान से निकट भविष्य में ही भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभरेगा। जय हिंद, जय भारत। जहां आपका राष्ट्रपति बनना देश की महिलाओं और लड़कियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, तो वहीं विकास की धारा में दशकों तक पीछे रह गए आदिवासी समाज के लोगों के लिए भी आत्मसम्मान का एक नया संबल है। The form of government chosen by the leaders of a nation is a critical determinant of the type of life its citizens and future generations will live. The freedoms enjoyed, the availability of opportunities, rights, duties, all stem from the principles of governance adopted. When India chose to become a republic, it was as a recognition of the importance of the power of the people in choosing their representatives and governing through them. Our nation is heterogeneous in composition. Its culture, climate, economic diversity makes its challenges and strengths extremely unique. And here, children excited, Kartavya Path and its surrounding vistas central to today's parade. It is, of course, a labor of love and pride for all agencies who have worked here to make this event so special. गणतंत्र दिवस परेड में देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और सामरिक शक्ति का अविस्मरणीय प्रदर्शन होता है और इस राष्ट्रीय पर्व के समारोह को पूर्णता प्रदान करता है भारतीय वायुसेना का फ्लाई पास्ट। हवा में गर्जना करते उन्नत विमान भव्य राष्ट्रपति भवन के ऊपर से होते हुए जब कर्तव्य पथ पर पहुंचते हैं तो यहाँ मौजूद हजारों अतिथियों को देश प्रेम और रोमांच की पराकाष्ठा का एहसास होता है। इस साल की परेड के आकर्षक फ्लाई पास्ट में 50 वायुयान भाग ले रहे हैं, जिसमें लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर्स और परिवहन विमान भी शामिल हैं। देश की वायु सीमा की रक्षा के लिए सतत मुस्तैद भारतीय वायुसेना के कुशल पायलट्स ने लगातार कठिन अभ्यास की बदौलत आज आयोजित होने वाले फ्लाई पास्ट को वर्तमान स्वरूप प्रदान किया है।
भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम और अदम्य साहस के गौरवशाली प्रदर्शन को समेटे। गणतंत्र दिवस पर होगा भव्य फ्लाई पास्ट। इस ऐतिहासिक फ्लाई पास्ट में 44 एयरक्राफ्ट दिखाएंगे आकाश में साहसिक करतब। कर्तव्य पथ साक्षी बनेगा जैगुआर, सुखोई, अपाचे और राफेल जैसे एयरक्राफ्ट के हैरत अंगेज कर देने वाले एयर शो का। इस फ्लाई पास्ट में भरी जाने वाली हर एक उड़ान की होगी खास थीम, जो देगी विशेष संदेश। सबसे पहले आकाश में दिखेगा ध्वज फॉर्मेशन। इसमें 4 Mi-17 हेलीकॉप्टर तीनों सेना के झंडे और भारतीय तिरंगे को लहराकर इस पर्व को शुरू करेंगे। इसके बाद बारी होगी रुद्र की। फर्स्ट आर्मी व्हीकुलर कंटिंजेंट के ठीक ऊपर 4 एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर डायमंड फॉर्मेशन के जरिए पेश करेंगे असाधारण करतब। एक 1000 फीट की ऊंचाई पर 3 सुखोई 30 लड़ाकू विमान आसमान में धुएं से बनाएंगे त्रिशूल फॉर्मेशन। ये शक्ति और साहस का प्रतीक होगा। एयर शो का दूसरा हिस्सा देखने को मिलेगा गणतंत्र दिवस परेड के बाद। सबसे पहले बारी होगी प्रचंड फॉर्मेशन की। इसमें एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, 2 अपाचे और 2 एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर जोश और जुनून को चरम पर ले जाएंगे। इसके बाद अगले कुछ मिनट तक आसमान में हैरत अंगेज कारनामों से आपको रोमांच से सराबोर करने के लिए वायु योद्धा पेश करेंगे तिरंगा फॉर्मेशन। इसमें शामिल होंगे 5 सारंग एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर। (1971) के युद्ध में टंगेल में एयर ड्रॉप की याद में एक डकोटा विंटेज ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 2 डॉनियर एयरक्राफ्ट बनाएंगे फॉर्मेशन टंगेल। रोमांच और उत्साह उस समय और बढ़ जाएगा जब जाबाज वायु योद्धा आकाश में पेश करेंगे बजरंग फॉर्मेशन। इसमें होंगे 1C-130 और 4 राफेल। इसके बाद 4 राफेल लड़ाकू विमान और एक बोइंग E-7 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम करतब दिखाने के साथ ही अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे नेत्रा फॉर्मेशन में। जोश अपने चरम पर होगा जब वायु सैन्य शक्ति में इजाफा करने वाले एक C-17 और 2 सुखोई 30 मिलकर बनाएंगे भीम फॉर्मेशन। आकाश में नजरें टिक जाएंगी जब 6 जैगुआर विमान बनाएंगे फॉर्मेशन अमृत। तो इंतजार कीजिए उस रोमांचित और भव्य फ्लाई पास्ट का। The Indian Air Force, considered one of the stronger air power forces in the world, our men and women in blue, in keeping with their motto, will also touch the sky with glory here at the Republic Day Parade. From the showering of flower petals as the parade begins to the much-awaited breathtaking finale, the fly past towards the closure of the parade, 45 Indian Air Force aircraft, 1 from the Indian Navy and 4 helicopters from the Indian Army will participate in today's parade.
So a misty morning here in New Delhi. The wind chill factor seems to be picking up. In fact, the day dawned and it was anticipated that the sun would shine very clearly quite early. But you know how it is with the weather gods. And here, I'm sure people who haven't brought their headgear with them are regretting the fact the mist seems to be giving a very romantic hue to this whole vista. Before the parade begins, the Prime Minister will be laying a wreath as homage to our brave warriors who laid down their lives fighting for the country. And of course, as we earlier shared with you, the arrangements, a lot of effort has gone into making the arrangements here. We have the communication for the fly-past control and coordination being done by the 1 Air Force Formation Signal Regiment's Communication and Control Center under the leadership of the regiment's commanding officer, Colonel Manjunath Raju. Work, effort, training, and discipline. There is, of course, the All India Radio commentary, which will go live. The CPWD has also worked very hard. And the exceptional quality of the sound system that covers Kartavya Path has been arranged by the 1 Army Headquarters Signal Regiment Center under the command of Colonel Rajkumar Mishra, with Lieutenant Colonel Reddy as the officer commanding Public Address Section. Army known for ensuring that enough practice, enough discipline goes into bringing about perfection. And this is a program, this is a celebration, which is a national celebration. And visual images have an impactful way of imprinting themselves on our mind. And many images, in fact, today will continue to endure over time and form lasting memories. कर्तव्य पथ पर इस बार इंतजाम बेहतर और काफी व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर सभी की व्यवस्था की गई है। पूरे कर्तव्य पथ पर 10 LED स्क्रीन्स भी लगाए गए हैं और ये सलामी मंच के सामने सारनाथ के प्रसिद्ध सिंह शीर्ष का प्रतिरूप बनाया गया है। विश्व शांति और एकता का प्रतीक हमारा ये राष्ट्रीय चिन्ह है। भारत सरकार ने ये चिन्ह 26 जनवरी सन 1950 को अपनाया। वसुधैव कुटुंबकम, भारत का मानचित्र और राष्ट्रीय पक्षी मोर, ये सभी इसी राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे देखे जा सकते हैं। इसी के नजदीक सैन्य बैंड वादकों का दल है जो राष्ट्रपति के आगमन और प्रस्थान पर राष्ट्रगान की धुन बजाएगा। मिलिट्री बैंड दस्ते की कमान संभाली है सूबेदार मदन सिंह ने और पाइप और ड्रम बैंड सूबेदार मेजर बसवराज वग्गे की कमान में। गणतंत्र दिवस समारोह में 21 तोपों की सलामी लेफ्टिनेंट कर्नल विकास कुमार की कमान में दी जाएगी। नायब सूबेदार अनूप सिंह गन पोजीशन ऑफिसर हैं। इस बार विशेष बात यह है कि जिन तोपों से ये सलामी दी जाएगी उनका निर्माण देश में ही किया गया है। 105 mm लाइट फील्ड गन से सलामी दी जाएगी। इस गन ने ब्रिटिश मेड 25 पाउंडर गन की जगह ली है। मेक इन इंडिया की एक धमाकेदार पहल। आज की परेड में माननीय राष्ट्रपति जी के आगमन पर भारतीय वायुसेना की फ्लाइट लेफ्टिनेंट कोमल रानी राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगी। कर्तव्य पथ पहले से निखरा हुआ, संवरा हुआ, जहां सुविधाएं बढ़ाई गई हैं, यहां सभी ने अपने अपने ढंग से योगदान दिया है। दूरदर्शन की तैयारी भी बेहतर को और बेहतर बनाने की है। A picture speaks 1,000 words.
On jagged peaks and icy slopes, they tell the tales of the Jimny, known to men and mountain goats. What stories will they tell about you? The new 5-door Jimny, inspired by true stories. वीको वज्रदंती, इतना झाग नहीं, शायद टेस्ट नहीं, लेकिन आपके गम प्रॉब्लम्स पर असर सही। इसकी 18 जड़ी बूटियां स्वोलन गम्स, ब्लीडिंग गम्स जैसे प्रॉब्लम्स को रखे दूर और दांत रखे हेल्दी। मजेदार नहीं, असरदार। वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट। On jagged peaks and icy slopes, they tell the tales of the Jimny, known to men and mountain goats. What stories will they tell about you? The new 5-door Jimny, inspired by true stories. लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। AIC से फसल बीमा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। On jagged peaks and icy slopes, they tell the tales of the Jimny, known to men and mountain goats. What stories will they tell about you? The new 5-door Jimny, inspired by true stories. An important marker of the start of the Republic Day parade is the customary homage paid by the Prime Minister as he leads the nation in paying tribute to the martyrs at the National War Memorial. An inter-services guard is formed by 7 soldiers representing the armed forces, and this year will be commanded by an Air Force officer, Squadron Leader Akash Gangas. A war memorial is a building, monument, statue or an edifice to celebrate a war or victory or to commemorate those who died or were injured in war. Since independence, more than 26,000 soldiers of the Indian Armed Forces have made the supreme sacrifice to defend the sovereignty and integrity of the country, and the National War Memorial represents the gratitude of a nation to its armed forces. This memorial has a distinct scheme of concentric circles wherein you've got the Amar Chakra, circle of immortality, the Veer Tar Chakra, which is the circle of bravery, the Tyag Chakra, or the circle of sacrifice, and the Raksha Chakra, which is the circle of protection. You can see the names here of the 26,000 soldiers who have made the supreme sacrifice, embossed in gold on granite tablets. The memorial complex is in harmony with the existing layout and symmetry of the majestic Kartavya Path and central vista. Solemnity of the ambience is maintained with an emphasis on landscaping and simplicity of architecture. Apart from the main memorial, there is a dedicated area for the busts of soldiers who've been conferred with the Paramveer Chakra, the nation's highest gallantry award. The design of the main memorial exemplifies the supreme sacrifice made by a soldier in the line of duty, not only making him immortal, but also depicting that the spirit of the soldier remains eternal. The covered gallery that exhibits 6 murals crafted in bronze depicting the valiant battle actions of the armed forces. राष्ट्रीय समर स्मारक पर स्थित परम योद्धा स्थल उन जांबाज शहीदों की याद दिलाता है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। परमवीर चक्र से सम्मानित सभी 21 अमर बलिदानियों को विशेष सम्मान दिया गया है परम योद्धा स्थल में। यहाँ पर सभी परमवीर चक्र विजेताओं की कांस्य प्रतिमाएं लगाई गई हैं। लगभग 40 एकड़ तक फैला है ये परम योद्धा स्थल। भारतीय सेना की वीरता, शौर्य, असाधारण योगदान की गौरवशाली परंपरा का निर्वहन और उसकी याद दिलाता ये राष्ट्रीय समर स्मारक
हजारों अमर शहीदों को समर्पित ये राष्ट्रीय समर स्मारक